بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولیات مہیا کر رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن تک کا سفر مکمل کر لیا تھا 2 سے 3 حصوں میں۔ آج ہم اگلا سبق سٹارٹ کریں گے، سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ تو چلو آئیے پاکستان کی سیر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34، آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ جی بچوں، بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ پاکستان کے صوبوں سے واقف ہو جائیں گے۔ پاکستان کے صوبوں کے بارے میں آپ کو بہت اہم معلومات جو ہیں وہ اس چیپٹر سے ملنے والی ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپ معلومات آپ کو پاکستان کے تمام صوبوں سے متعلقہ بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ معلومات جو ہیں وہ آپ کو اس چیپٹر سے ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس چیپٹر سے مزید کیا سیکھیں گے، دوسرے صوبوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، اور اس سبق میں محاوروں کی بھی جو ہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو محاورات کی بھی سمجھ اچھے سے آئے گی۔ تو چلے آئیے پاکستان کی سیر کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین، ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی۔ سونا اگلتی زمین کا مطلب ہے کہ یعنی کہ زرخیز مٹی ہے یہاں، یعنی کہ جو پاکستان کی زمین ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے، سونا اگلتی زمین ہے۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں، یعنی کہ مزے مزے کے جو پھلوں کے باغ ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، یعنی کہ کھیتوں کو ان دریاؤں سے پانی لگتا ہے۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ فلک بوس کا مطلب ہوتا ہے آسمان کو چھونے والی۔ آسمان کو چھونے کا مطلب ہے بہت اونچی۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں، یعنی کہ بہت اونچی اونچی پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ چار چاند کا مطلب بہت زیادہ رونق لگا دیتی ہیں۔ آبشار کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا پیارے بچوں، آبشاریں جو ہوتی ہیں بڑے خوبصورت پانی لگتا ہے جب اس پہ سے گرتا ہے۔ قدرتی آبشاریں بھی ہوتی ہیں اور مصنوعی آبشاریں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ رقبے کے لحاظ سے یعنی کہ ایریا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، یعنی کہ یہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں، یعنی جو صوبہ بلوچستان ہے تینوں صوبوں سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ جی بچوں سمجھ آئی؟ بلوچستان جو ہے وہ ویسے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ ان صوبوں میں سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ تو جو بلوچستان کی سرحدیں اور پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کے ساتھ ملتی ہیں، اور اس میں بلوچی، براہوی، پشتو جو بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی بھی کچھ حصے میں بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔
बंजर होता है ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुछ उग ना सके। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है, गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। सिब्बी जो है वो जगह का नाम है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल मनानुल हफीज़, यानी कि अल्लाह ताला की पनाह, अल अमानुल हफीज़। अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज़ इस मकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1938 में आने वाले एक ज़लज़ले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया था। मलियामेट का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो गया था उसका, यानी कि निशान जो है तबाह व बर्बाद जो है वो हो गया था। मलियामेट का मतलब है तबाह व बर्बाद हो गया। जी बच्चों, ज़रा पीछे से रिव्यू लेते हैं क्या है। हम पाकिस्तान की सैर को निकले हुए हैं और इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बच्चों कितनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़े, उसमें हमें समझ आई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो प्यारा वतन पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ था और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। यहाँ की सोना उगलती ज़मीनें पे हर तरह की फसलें पैदा होती हैं, हर तरह के फल यहाँ पे उगते हैं, दरिया यहाँ पे हैं, समुंदर यहाँ पे हैं, पहाड़ी ऊंची फलक बोस पहाड़ियाँ चोटियाँ यहाँ पे हैं। हर चीज़ से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ठीक है, हर सूबे की तरक्की और खुशहाली जो है वो, हर सूबा जो है अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता है। ठीक है, और पाकिस्तान के हर सूबे का रहने वाला है जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। जो सबसे पहले हम बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा है हमने कि बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसका जो दारुल हुकूमत है वो कोयटा है। इसकी आबादी 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की जो सरहदें हैं वो बाकी तीनों सूबों के साथ मिलती हैं। यहाँ पे बलोची, ब्राह्वियत, पश्तो बोली जाती है। इसके अलावा कुछ हिस्से में सिंधी भी बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो बलूचिस्तान है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है, रकबा जो है, जो इसका जो एरिया है वो ज़्यादातर बंजर है। बंजर का मतलब आपको मैंने बताया, बंजर का मतलब है ऐसी ज़मीन जिसमें कुछ उग ना सके, कोई भी चीज़ उगाने के काबिल ना हो वो ज़मीन। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है, गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। और यहाँ का जो सबसे गर्म तरीन इलाका वो सिब्बी है। और पिछले यानी कि 2010 में सिब्बी में इतनी गर्मी पड़ी कि अल्लाह की पनाह, 53 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहाँ पे दर्जा हरारत रहा। और चूँकि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ पे ज़लज़ले भी आते हैं। और 1938 में एक ज़लज़ले की वजह से जो कोयटा शहर है बिल्कुल मलियामेट हो गया था, यानी कि तबाह बर्बाद हो गया। आगे चलते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफर मकदार में पैदा होता है। वाफर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल है। ये सूबा मदनी वसाइल से मालामाल है। यहाँ सुई के मुकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। सुई जो है वो जगह का नाम है जहाँ से सुई गैस निकलती है। तो प्यारे बच्चों, जो हम अपने घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं ना, सुई गैस होती है जिसके ऊपर खाना पकता है, वो सुई गैस होती है ना। तो असल में गैस ही उसका नाम होता है। सुई जो है वो उस जगह के नाम को जो है साथ अटैच किया हुआ है। सुई जो है वो बेसिकली जगह का नाम है। ठीक है, तो इसलिए इसको सुई गैस बोला जाता है। अदरवाइज़ गैस का नाम सुई नहीं है, गैस का नाम गैस ही होता है। तो सुई गैस, क्योंकि जो ये गैस है सुई के मुकाम से निकलती है इसलिए इसको सुई गैस बोलते हैं। बलूचिस्तान में हाल ही में ग्वादर के मुकाम पर बंदरगाह तामीर की गई है। इस सूबे को ये एजाज़ भी हासिल है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी सूबे के एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम ज़ियारत में गुजारे। जी बच्चों, यहाँ पे एक जगह है ज़ियारत जिसका नाम है ज़ियारत। यहाँ पे कायद-ए-आज़म ने आखिरी दिन अपने गुजारे। जी बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि बलूचिस्तान की जो सरजमीन है, बाकी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे फलों के लिए ये सूबा बहुत मशहूर है। पाकिस्तान का जो 90% अंगूर है वो यहीं से आता है। चेरी, बादाम,
खुबानी, आड़ू, अनार, सेब, खजूर वगैरह सब यहीं पर पैदा होते हैं। और यहाँ पे एक जगह है सुई, वहाँ उस मुकाम से सुई गैस भी निकलती है, कुदरती गैस निकलती है। बलूचिस्तान में हाल ही गवादर के मुकाम पर बंदरगाह भी तमीर की गई है। बंदरगाह क्या होती है बच्चों? बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जैसे कि गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए एक गाड़ियों का स्टैंड होता है, बस खड़ी करने के लिए बस स्टैंड होता है, एरोप्लेन्स खड़े करने के लिए, या वहाँ पे पैसेंजर्स उतारने और चढ़ाने के लिए एयरपोर्ट होता है, और ट्रेन के लिए जो है वो स्टेशन होता है। इसी तरह जो कश्तियाँ होती हैं ना, कश्तियाँ या जो समुद्री जहाज़ होते हैं बच्चों, उनके ठहरने का मुकाम जहाँ से सवारियों ने या माल ने उसके अंदर चढ़ना है या उतरना है, उस जगह को कहते हैं बंदरगाह। वो समुद्र के किनारे होती है, ठीक है। गवादर के मुकाम पर बंदरगाह तामीर की गई है। इस सूबे को ये भी एजाज़ हासिल है कि कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम का मतलब होता है दिन, यानी कि आखिरी दिन जो हैं इसी सूबे में गुजारे थे ज़ियारत के मुकाम। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रवाज है। बलोची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। इनकी कमीज़ के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज़ पर कढ़ाई की होती है और इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। जी बच्चों, दोबारा बताती चलूँ, आपको बलूचिस्तान के बारे में बड़ी मज़े की मालूमात मिल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा अब हम ड्रेसिंग की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ के लोग कैसा लिबास पहनते हैं। यहाँ जो बलूचिस्तान के जो मर्द हज़रात हैं वो पगड़ी सर पे पहनते हैं और घुटनों तक लंबे लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें, यानी कि वो जो खुली शलवारें होती हैं वो पहनने का इनका रिवाज है। बलोची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। इनकी कमीज़ के सामने की जानिब, सामने की तरफ एक लंबी जेब लगी होती है और आमतौर पर इनकी कमीज़ों पर कढ़ाई होती है, उसके ऊपर शीशे का काम हुआ होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। तो बच्चों, ये बलूचिस्तान की सैर तो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब हम पंजाब की सैर को निकल रहे हैं। पंजाब दो लफ्ज़ों पंज और आब से मिलकर बना है। क्या समझ आई बच्चों? दोबारा सुने, पंजाब दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पंज और आब। पंज और आब, पंज के मानी है पाँच और आब के मानी है पानी। गोया पंजाब के मानी हुए 5 दरियाओं की सरजमीं। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। जैसे कि बलूचिस्तान की सरहदें तीनों सूबों से मिलती हैं, इसी तरह इसकी भी। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। जैसे बलूचिस्तान का कोयटा था, इसी तरह पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर सदियों से इल्म और सकाफ़त का मरकज़ रहा है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और बहावलपुर का शुमार पंजाब के बड़े शहरों में होता है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है जी बच्चों? मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का, इंग्लिस्तान का एक शहर है जो कि कपड़े के लिए मशहूर है। तो इसीलिए फैसलाबाद को जो है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में फैसलाबाद शहर में कपड़े का काम ज़्यादा किया जाता है। यहाँ कपड़ा बनाने की सनत है। खेलों के सामान और आलात जराही बनाने में सियालकोट का कोई सानी नहीं, यानी कि सियालकोट में जो है ज़्यादातर खेलों का सामान और आलात जराही बनाई जाती है। अजीम फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी शहर में पैदा हुए, यानी सियालकोट में। वज़ीराबाद में आला किस्म के चाकू छुरियाँ बनाई जाती हैं। वज़ीराबाद जो है वो चाकू छुरियाँ बनाने के लिए मशहूर है। गुजरात की पहचान उम्दा किस्म के फर्नीचर के साथ पंखा साजी की सनत भी है। अब जो गुजरात है वो उम्दा किस्म का फर्नीचर वहाँ पे बनता है और पंखा साजी जो है उसका काम वहाँ पे होता है। गुजरांवाला में बिजली से चलने वाली अशिया मसलन वॉशिंग मशीन, पंखे, कूलर, रूम कूलर और हीटर बनते हैं। चिनियोट में बना हुआ फर्नीचर अपनी मिसाल चिनियोटी फर्नीचर जो है वो बड़ा मशहूर है। लोग ख़ास कर वहाँ से जो है स्पेशल जो है फर्नीचर तैयार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पंजाब के स्टार्ट में क्या पढ़ा है कि पंजाब जो है वो 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है, पंज से और आब से। पंज का मतलब 5 और आब का मतलब पानी, यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन। इसका दारुल हुकूमत लाहौर है। इसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लाहौर को। ये शहर सदियों से इल्म और सकाफ़त का मरकज़ रहा है। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और बहावलपुर यहाँ के बड़े बड़े शहर हैं।
फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम मैनचेस्टर है। वहाँ पे कपड़े का काम ज़्यादा होता है, इसलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपड़े की सन्नत है और सियालकोट में आलात जराई और खेलों का सामान बनाया जाता है, और जो है वज़ीराबाद में चाकू और छुरियाँ बनाई जाती हैं। गुजरात में पंखा साजी और उम्दा फर्नीचर बनाया जाता है। गुजरांवाला में बिजली से चलने वाली अशिया जैसे वॉशिंग मशीन, पंखे, रूम खोल और हीटर वाला बनाए जाते हैं। इसी तरह चिन्योट में जो है वो फर्नीचर जो आला किस्म का बनाया जाता है। पंजाब की सरजमीन नहायत ज़रखेज़ है, यहाँ बेहतरीन नहरी निज़ाम है। ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से यहाँ फसलें भी खूब उगती हैं। गंदम, कपास, गन्ना और चावल यहाँ पैदा होने वाली मशहूर फसलें हैं। छांगा मांगा जंगल अपनी नोयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है, यानी कि अलग नज़र आता है। ये एक 12,510 एकड़ पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसे खुद उगाया गया है, यानी कि मसनूई जंगल है, कुदरती जंगल नहीं है। चोलिस्तान के रेगिस्तान भी इसी सूबे में हैं। यहाँ ख्योड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, यानी कि पंजाब में चोलिस्तान का रेगिस्तान भी है और ख्योड़ा के मुकाम पर नमक की कान भी है। पंजाब में कोयले के भी वाफर ज़खाइर हैं। इसके अलावा पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा से मिलने वाली आसार कदीमा भी ख़ास अहमियत रखते हैं। अब आसार कदीमा क्या होता है? आसार कदीमा होते हैं पुराने वक्तों के निशानात, यानी कि पुरानी इमारतें। यहाँ पे यानी कि साहिवाल के करीब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, पुराने आसार कदीमा ही हैं। अब यहाँ पे हमारी जो है पंजाब की सैर मुकम्मल होगी। आपने देखा पंजाब में कितना कुछ है, हम भी पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाबी हैं। अब हम चलते हैं सिंध की सैर। सिंध को मेहरान के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं। दरिया सिंध की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। यहाँ का दारुल हुकूमत कराची है, जैसे बलूचिस्तान का कोयटा, पंजाब का लाहौर, इसी तरह सिंध का जो दारुल हुकूमत वो कराची है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे पहली बंदरगाह भी कराची ही है। बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक़ कराची से ही था। इनका मज़ार भी कराची में है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी और सिंध को फतह किया। शिकस्त यानी कि हरा दिया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासर होकर गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद हल्का बगोश्त इस्लाम हो गई। हल्का बगोश्त यानी कि फर्माबरदार उनके बैत हो गई। ताहम अब भी सिंध में हिंदू कौम खासी बड़ी तादाद में आबाद है। सिंध की आबादी का 7.5% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। सिंध में बोली जाने वाली बड़ी ज़ुबान सिंधी है। वादी सिंध की तहजीब नहायत कदीम है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले सारे कदीमा यहाँ के कदीम लोगों की फ़नी महारत और आला मेयार ज़िंदगी का पता देते हैं। जी बच्चों, क्या आपको समझ आई? सिंध जो है, सिंध को मेहरान का नाम दिया जाता है। ये लफ्ज़ सिंधु से निकला है जिसका मतलब है दरिया। ठीक है, संस्कृत में सिंधु को दरिया कहते हैं। ये दरिया सिंध की वजह से इसको सिंध का नाम मिला है। यहाँ का दारुल हुकूमत जो है वो कराची है। इसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो सबसे पहली बंदरगाह है वो कराची ही है और कायद आज़म का ताल्लुक भी कराची से ही था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह किया था राजा दाहिर को शिकस्त देके। तो यहाँ पे फिर वो इस्लाम लेके आया था, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे वो खासी तादाद में हिंदू मौजूद हैं। 7.5% तनासुब है हिंदुओं का। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो ज़ुबान बोली जाती है वो सिंधी है। वादी सिंध की तहजीब नहायत कदीम है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले सारे कदीमा भी कदीम लोगों की फ़नी महारत और आला मेयार की ज़िंदगी का पता देते हैं। सफ़ा नंबर 37। ठट्ठा का कदीम तारीखी शहर इसी सूबे में है। यहाँ की जामा मस्जिद और मंशेर झील बहुत मशहूर है। यहाँ मकली का कब्रिस्तान है। इसे दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। सूबा सिंध का ज़्यादातर रकबा बंजर और गैर आबाद है, यानी कि बंजर मैंने आपको पहले बताया जहाँ पे कुछ उग ना सके, और गैर आबाद है यानी वहाँ पे लोग भी नहीं हैं। जहाँ जहाँ आबपाशी के लिए पानी मौजूद है वहाँ फसलें होती हैं। यहाँ आम, खजूर और केले के बागात हैं। सिंध में लोग भेड़ बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। सिंध में 3.5 करोड़ के लगभग लोग आबाद हैं। यहाँ की सिंधी टोपी और अजरक ख़ास तौर पर मशहूर है। सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास और लाड़काना शामिल है। जी बच्चों, क्या समझ आई आपको कि ठट्ठा का कदीम तारीखी शहर भी यहीं पे है, मकली का कब्रिस्तान और मंशीर झील भी यहीं पर है। सूबा सिंध का जो रकबा ज़्यादातर बंजर और गैर आबाद है।
یہاں پر آبپاشی کے لیے جہاں جہاں پانی موجود ہے وہاں وہاں فصلیں اگتی ہیں. آم کھجور اور کیلے کے باغات ہیں یہاں پہ. یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں وغیرہ اور اونٹ وغیرہ پالتے ہیں. اور یہاں کی جو سندھی ٹوپی اور اجرک ہے وہ بہت مشہور ہے. اس میں جو مین شہر ہے وہ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میر پور خاص اور لڑکانہ جو ہے وہ سندھ میں آتے ہیں. خیبر پختونخوا بچوں ہماری جو ہے وہ سندھ کی سیر مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا کے شہر. خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے. اس کا یعنی کہ دارالحکومت پشاور ہے. مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر. یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں. خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے. آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے. افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں بچوں، یہ درہ خیبر ہے. اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے. یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے. سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. یہاں کی جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں. سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں. جی بچوں، خیبر پختونخوا کی سیر کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا جو دارالحکومت ہے وہ پشاور ہے. مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور جو یہاں کے مشہور شہر ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پشتو بولتے ہیں. اور جو ہزارہ ڈویژن ہے، ایبٹ آباد ہے، مانسہرہ، ہری پور وغیرہ وہاں پہ زیادہ تر ہندکو بولی جاتی ہے. اور درہ خیبر یہ رہا. درہ خیبر بھی یہاں پہ بہت مشہور ہے. افغانستان جانے کے لیے اسی پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے. یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے. اور سوات اور کاغان بھی اسی صوبے میں شامل ہیں. اس کا جو سوات اور کاغان کو قدرتی حسن دیکھ کر اور سیف الملوک جھیل کو دیکھ کر اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں. اور سوات کی وادی اور اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اس کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو سوات ہے وہ اس قدر خوبصورت وادی ہے کہ اس کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی، جفاکشی محنت کی وجہ سے مشہور ہے بہت. یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ بہت سارے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج ہم نے پاکستان کی سیر کی. ہمیں بہت مزہ آیا اور ہمیں بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ چلا جو ہمیں پہلے نہیں معلوم تھی. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور چاروں جو ہیں وہ پاکستان کی جان ہیں. اور ہم سب جو ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، تو چاہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، سب ایک ہیں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے میں آپ کو ایکسرسائز اور سوال جواب وغیرہ کرواؤں گی. تب تک آپ اس کی ریڈنگ کو بار بار مزے سے پڑھیے اور سیر کرتے رہیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے.